Tell me, will she get it? No, because this is her foolishness. Similarly, this being has been wandering in the world for ages. What he wants and why, he doesn't know. It is worth here to stay or not. He don't know what he want, why he want, and where he go. In the world, while living, we immerse with the raga, dvesha, bhava, and because of this, we bind the karmas. And bind the karmas, we again drown in the bhavasagar. In the watch, counting will remain till 1 to 60, and we set it as a limitation. But why we don't think that how many days, how many centuries have been passed and how will be passed? We harboring these false thinking in our mind. This being is independent, self-aware, has own creator, has own destroyer, has own wishes. But the mud of Raga, Dvesha, Kashaya has been splashed on the clean cloth of Atma. Now which detergent can we use to clean it? So Acharya Kund Maharaj create the detergent like Samay Sar to clean this Atma. To clean our bhav, to clean our pure. To give us a pure state of our Atma. With this pure state, whom the Acharya Kund Maharaj saluted in the Samayasara Grantharaj. Why he bow them? Why we bow them? So in the Gatha number of 1, Acharya Kund Maharaj said, Vandittu Savva Siddhe, Dhuva Mamale Mado Babam Gadim Patte, Vochami Samay Pahud, Midmo Sud Kevali Bhadidam. That I am saluted all the Siddhas, who is pole, who is pure, and who gain the uncompareless Pancham Gati. I tell you the Samay Sar, which was described by the Shuddh Kevalis. The being is free from the 8 karmas and gain the 8 gunas. Here, Acharya talking about the Dhruv Guna. What is Dhruv? It means pole. It means study. The being is pole. The being is immortal. How he is immortal? So while living in the sansar, why we don't think that we always think that everything will remain with me. But why we don't think that this breath is like a flowing water. This life is like a water destroyed in the palm, just like our life will be destroyed. In the second term, he said, these siddhas are amal. It means pure. We wind the karmas every time. And while we wind karmas, we drown in the bhavasagar. So we all are the children of Puji Gurvarshi Sudha Sagarji Maharaj. If the Guruji is not defeated by someone, then why be defeated by someone? So by become the freedom fighter, we will defeat the enemies of karmas and driven out these enemies from the Bharat like Atma and free from the Dabba karma, Bhav karma and no karmas. In the third term, Acharya said, the Siddhas are gain the Ado Babam Gadim Patte. In the world, there are every simile connected with any individual. It is only given by the Rag and Dvesh Bhav. But we are not a normal person. We get this Pancham Gati where every simile got faded in front of it. There is no Acharya who can describe this comfort of moksha in the fully words. So we gain this Pancham Gati, not the Bhavsagar.
That's why the Acharya Kundukund Maharaj bore the Siddhas. In our dharma, there is a pure state more than the 24 karat gold. How? How I have a pure state more than the 24 karat gold? So why we think that we will become a king of public opinion? It is best to become the king of our own self and rule on our indriyas. We have the ocean of bhava, we have the ocean of shastra, and we have the boat of devotion. By devotion, we got everything, we get everything. Devotion is the most powerful thing in the world. Acharya Kundukund Maharaj devote these siddhas. Think how immense this knowledge, think how immense this wisdom, who accept the Ratnatraya. Acharya Kundukund Maharaj describing the soul who was living, who is living, and who will be living. And at last, the soul become the part of moksha. But instead of, he pledged in the Granth and said, Tam eyat vihattam da eham appano saveh veena jadi daej pamanam chukkej chalam nagetabam. That I will tell you the samay sar. If I tell you completely, then accept it. And if I fail it miss, then don't accept the deception. Because he know in the Kali Yuga, the relationship between listener and speaker would impure. Everyone have less intelligent. What do you mean? The Acharya is less intelligent? No. The Acharya is more intelligent than us. But he is woe for his pledge. How immense the knowledge. We don't have this type of knowledge. But here the Acharya show his smallness, here the Acharya show his dignity. The Acharya Maharaj is like a tree. Have you ever heard that the tree is bowed down to spreading his fruits to everyone? Just like our Digambar Muniraj is laid down to earth to spreading the dharma in all over the world. We are mental, we are made to search the peace in front from everywhere. We go place to place for searching this peace. But this peace is not in the luxurious thing. This peace is lies at the feet of the Digambar Muniraj. The Muniraj who imagine the Atma, the Muniraj who imagine our pure soul. So I am not, at this time, I am not able to imagine my Atma. But if imagine is necessary, then I imagine my Guru, because he know the pure Atma, he know the pure soul. Today we will strive on the tradition of our Guru. Just like a baby fish cannot learn to swim to someone, we too all are the Shaman Sanskriti Sansthan children's. Guruji said once that the qualities of parents inherit automatically in their children. So, like our Guruji, we too roar like a lion, propagating the dharma and bringing the path of anekant and removing the ekant path. In this impure world, we have the pure shelter. Just like the water lily have the shelter of moon, lotus have the shelter of sun, eyes have the sight, life has the oxygen. Just like we all children have the pure shelter of Muni Pungab Ji, Sudhasagar Ji Maharaj. Now we find the solution of this confusion. We get our Atma. We search our Atma in our own, not on other any places. So at last, with the good blessings, I want to tell you
that search your Atma in your own, because you are creator and you are destroyer. Do the devotion, because devotion is the most powerful thing in the whole world. By the rememberization of Bhagwan Adinath and the devotion of Bhagwan Adinath, the 48 logs of Acharya Manatunga break down on the earth and he was free from slavery. At the present example of Shravak Sanskar Shivir, a Shivrati who came under the train, but by the Ashirvad of Munipungam Shri Sudhasagar Ji Maharaj, he saved from the air and attained the whole Shivir. This is the power of Bhakti, this is the power of Ashirvad. So, we do our own welfare and do the welfare of other with the good blessings. All are chanting together at last, Jai Bole Mahavir Bhagwan की. ओम। बहुत सुंदर तरीके से आंग्ल भाषा में बहन प्राप्ति जैन ने अपने समय सारजी ग्रंथ पर प्रवचन को यहाँ पर रखा। महाराज श्री, हमारा संस्थान जिसका स्थापना जो पाश्चात्य भाषाएं हैं उनका उन्नयन हो, इसकी दृष्टि से आपने किया था। प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, इनमें लिपिबद्ध जो भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में, उनका अर्थ करने में हमारी बहनें एवं हमारे भैया समर्थ हो, इन उद्देश्यों के साथ में आपने ये संस्थान की स्थापना की थी और लोगों को भी यही लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ये विद्वान और ये विदुषी बहनें पाश्चात्य विद्याओं में जितनी निपुण हैं उतनी ही निपुण अर्वाचीन भाषाओं में हैं और आंग्ल भाषा में उनके द्वारा दिया गया ये प्रवचन उसकी बिल्कुल आपको प्रमाण है। अगले क्रम में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में शास्त्री तृतीय वर्ष में अध्ययनरत भैया पीयूष जी जैन सागर अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पीयूष जी, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। चल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे धोबमलवडोबं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुद केवली भड़िदम। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांति विदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले चैतन्य चमत्कार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, बोली महामनी श्री उदारमना शब्द शिल्पी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, बोली नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, बोली जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महामुनि राज जी की, बोली जगत कल्याणी द्वांगसांग जिनवाड़ी माता की। एक बच्चा रहता है, वह बच्चा होली की रंग को देखकर डर जाता है। वही दूसरा और वही बच्चा खून को देखकर बड़ा खुश होता है। इसी प्रकार से आचार्यों ने दो मार्ग बताए। आचार्यों ने एक मार्ग बताया कि एक मार्ग जो निर्जरा का कारण है, निर्जरा का कारण बनकर मोक्ष में जो लगाने वाला एक तो वह कारण है, और दूसरा कारण जो मिथ्यात्व को धारण कर कर पतन का कारण है। ऐसे दो मार्ग बताए। आचार्यों ने दो मार्ग की चर्चा कर दी। आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे पास मार्ग दोनों हैं, जैसे जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू रहते हैं उसी प्रकार से ये दो कारण है। अब हमारे ऊपर है कि हम पतन की तरफ जाते हैं, दो गति की तरफ जाते हैं या मोक्ष की ओर जाते हैं। आचार्य कुंद महाराज जब समय सार जी में चर्चा कर रहे थे तो आचार्य जब चर्चा करते जा रहे थे तो चतुर्थ गाथा में आचार्य कहते हैं कि संसार ने जाना नहीं है। तो प्रश्न उठता है क्या नहीं जाना?
जिस प्रकार से कोई मूवी रहती है, कोई कहानी रहती है, हम कोई कहानी वही सुनना पसंद करते हैं, हम वही कहानी जानना चाहते हैं जो हमने कभी ना सुनी हो, हम वही मूवी देखना चाहते हैं जो आज तक हमने ना देखी हो। उसी प्रकार से ऐसी क्या बात आचार्य बता रहे हैं जो आज तक हमने नहीं देखी, नहीं सुनी। तो आचार्य चर्चा कर रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा को हमने कभी जाना ही नहीं, एकत्व विभक्त आत्मा को हमने कभी समझा ही नहीं, और समझा अनेकों बार जाना, तो कभी अगर जान रहे होते तो चर्या में आ जाता, एकत्व विभक्त आत्मा को ग्रहण कर लेते। तो आचार्य कहते हैं चतुर्थ गाथा में, सुध परिचिदाणु भूता सवस्वी काम भोग बंद कहा, शुभलम्बो रबड़ी सुलभ तस्य। आचार्य कह रहे हैं काम भोग और बंद की कथाओं में यह जीव उलझा रहा, इन में उलझा रहा, और इसको विपरीत जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको जानता रहा, अनुभव में लाया, देखा, लेकिन उसको दृढ़ नहीं किया। हम हमेशा भोग में लगे रहे, काम में लगे रहे, हमने काम को हमेशा भोगते रहे, काम की कथाएं सुनते रहे। तो आचार्यों ने जब काम और भोग की चर्चा करी तो इसके भी अनेक मत आ गए। जब जिनसेन आचार्य ने काम और भोग की चर्चा करी तो इनको डिवाइड कर दिया इंद्रियों में। तो जब काम की चर्चा करी तो काम को स्पर्शन और रसना इंद्रिय पे घटा दिया। जब भोग की चर्चा करी तो घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय पे घटा दिया। और आचार्य काम और भोग को एक मान रहे थे, लेकिन जिनसेन आचार्य कह रहे हैं कि काम भोग दोनों अलग है। जब हम अनादिकाल से जीवन बिता रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम घूमाए और घूम रहे हैं, पंच परावर्तन कर रहे थे, और अगर एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जान रहे हैं और पंच परावर्तन करते जा रहे हैं। जब आचार्यों ने पंच परावर्तन की चर्चा करी तो द्रव्य, चेत, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन है। तो जब द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जिसको हमने ग्रहण ना किया। संसार में जितने भी पुद्गल वर्गणाएं, उनको सबको ग्रहण कर लिया, और उसको ग्रहण करते हुए छोड़ दिया। अनेकों बार कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया और अनेकों बार छोड़ा। जब क्षेत्र की चर्चा की तो ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां हम उत्पन्न नहीं हुए। जब काल की चर्चा कर रहे हैं तो उस सर्पणी से लेकर अपसर्पणी तक जितने भी काल है उन सभी को हमने ग्रहण कर लिया। और जब भव की चर्चा करी तो चारों गतियों में, चारों भवों में घूमाए, चारों भवों में गए और त्रियंचों में गए, तो त्रियंचों में भी संगी और असंगी बने, वहां भी हुआ है, और सारे भवों को भोग लिया। और जब भाव की चर्चा आई तो षड्लेशाओं की चर्चा कर दी। तो षड्लेशाओं में जब चर्चा करी तो शुक्ल लेशा की परम अवस्था को, मतलब शुक्ल अवस्था की पीक अवस्था को, सबसे अच्छी अवस्था को लेकर सबसे जो कृष्ण लेशा है उसकी अवस्था तक हमने अच्छी और बुरी लेशाओं को भी ग्रहण कर लिया। ऐसे कोई भी द्रव्य नहीं बचा, ऐसा कोई पुद्गल नहीं बचा जिसको हमने ग्रहण ना किया। जब काम की चर्चा कर रहे थे तो काम की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि काम क्या है। काम उसे कहते हैं जो चेष्टाओं की पूर्ति कराए। और भोग की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भोग की परिभाषा उसे कहेंगे जो आवश्यकताओं की पूर्ति करा दे। अब बंद की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि बंद को क्या ले लिया उन्होंने, अनर्थ दंड व्रत मान लिया। जैसे अनर्थ दंड रहता है ना, फालतू की बातें करना, फालतू चीजों में अपना क्या लगाना, उपयोग लगाना, इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जब हम काम की चर्चा कर रहे हैं तो एक इंद्रियों में जब हम गए, 2 इंद्रियों में गए, 3 इंद्रियों में गए, चतुर्इंद्रिय में गए और पंच इंद्रिय में गए, तो इन चीजों में पूर्व भाव के, इन इंद्रिय जीवों में, पंच इंद्रिय जीव में पूर्व भाव के संस्कार थे।
क्या संस्कार थे? काम और भोग के संस्कार थे। जिस प्रकार से कोई गाय रहती है और गाय का बच्चा रहता है, बछड़ा रहता है, उसके गाय के बछड़े को ये सिखाना नहीं पड़ता कि दुग्धपान कहाँ करना है। वह अपनी माँ के पास जाकर स्तनों से दुग्धपान कर लिया करती है, उसे कभी ये संस्कार नहीं देने पड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई मनुष्य रहता है, मनुष्य को भोग भोगने के लिए, भोग की पूर्ति करने के लिए कभी नहीं सिखाना पड़ता है कि अच्छी वस्तु कौन सी है, खराब वस्तु कौन सी है। वह स्वतः ही भोग लेता है। कैसे? जिस प्रकार से कोई गाड़ी रहती है, गाड़ी को जब हम रोकते हैं तो गाड़ी रोकने के बाद वह थोड़े समय तक घूमती रहती है आगे की ओर, उसके पेडल चलती रहती है, क्योंकि उसके पूर्व भाव के संस्कार थे। जिस प्रकार से साइकिल रहती है, साइकिल के पेडल घुमाना जिस प्रकार हम बंद करते हैं, लेकिन थोड़े समय तक साइकिल आगे चलती रहती है, उसके पूर्वों के संस्कार रहते हैं। जिस प्रकार से फैन रहता है, उसको हम बंद करते हैं, लेकिन थोड़े समय तक वह घूमता रहता है, क्योंकि उसके पूर्वों के संस्कार थे। जिस प्रकार से कोई कूलर रहता है, कूलर को बंद करते हैं तो कुछ समय तक वह घूमता रहता है, ये पूर्वों के संस्कार थे। मानवो, मेरे गुरु मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी अकेला अर्थ करना नहीं सिखाते गाथाओं का। अगर अर्थ करना सिखाते तो सामान्य से अभी तक हमारी 30-40 गाथाएं तो हो ही जाती। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ग्रंथ पढ़ना है, लेकिन ग्रंथ के मर्म को समझना है। अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ अर्थ को जानना ही नहीं, उसके मर्म को और मर्म को जानकर उसको चारित्र में लाना जरूरी। हमारे गुरुदेव सिर्फ अर्थ को नहीं पढ़ाते, सिर्फ समय सार को नहीं पढ़ाते। हमारे गुरुदेव समय सार को अपनी आत्मा में, अपनी चर्या में उतारने का मार्ग बताते हैं। हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन को समय सारी बना लिया। हमारे गुरुदेव ने समय सार अपने जीवन में उतार लिया, अपनी आत्मा में उतार लिया। आज पूरे भारतवर्ष की समाज की सिर्फ एक ही जिज्ञासा है। आज पूरे भारतवर्ष की समाज में सिर्फ एक ही शंका है, बड़े आश्चर्य में है कि तुम्हारे गुरुदेव ऐसा क्या पढ़ाते हैं, तुम्हारे गुरुदेव ऐसा क्या देते हैं, तुम्हारे गुरुदेव ने ऐसा क्या दिया जो 15-15, 18-18 साल के बच्चे इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं। तुम्हें वहीं बोना पड़ गया कि ये शास्त्रों के ज्ञाता तो नहीं है, इनको कम शब्दों में कैसे बताऊं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। तो मैंने आज मैं उनको कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष की समाज को कहना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे आज ये दे दिया। आसान नहीं था उधर से यहां आना। आज गुरुदेव ने मुझे बोलना सिखा दिया। आज गुरुदेव ने मुझे तत्व का निरूपण करना सिखा दिया। आज मेरे गुरुदेव ने इतने छोटे बालक हैं, इतनी छोटी बालिकाएं हैं, उनको इस आधुनिक काल में धर्म की व्याख्या करना सिखा दिया। अपने जीवन में समय सार को उतारना सिखा दिया, चर्या को उदाहरण करना सिखा दिया। मानव लोग कहते हैं सावक संस्कार शिविरों में क्या मिलता है। हमारे जो पीयूष भैया जी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही श्रावक संस्कार की प्रेरणा से अपने जीवन में ग्रस्त अवस्था को छोड़कर अपने जीवन को समय सारी बनाने के लिए, अपने जीवन में समय सार को अभ्यास करने के लिए, अपने जीवन में समय सार को उतारने के लिए आ गए मुनि पुंगव सुधा सागर जी के दरबार में। मानव लोग कहते हैं संस्थान क्या देता है। संस्थान पंडितों को पैदा करता है, संस्थान पंडितों को देता है। मैं कहना चाहता हूं यह संस्थान पंडितों को नहीं देता है, यह चर्या वाले भैया जी को देता है। ये वही भैया जी एक दिन चारित्र को उदाहरण कर कर मुनि पुंगव सुधा सागर जी जैसे बन जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी उपमा दे दी मैंने, क्योंकि सुधा सागर मुनि बनना हर किसी के बस की बात नहीं। बोलना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उन जैसा बनना आसान नहीं। आज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। वे 100 कल्याण तो कर ही रहे हैं और पर कल्याण में लगे हुए हैं। आज हजारों लोगों का प्रत्यक्ष रूप से सावक संस्कार शिविरों में कल्याण कर ही रहे हैं और
अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। वह हजारों लोगों को अपनी आत्मा से रूबरू कराने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वह अपनी आत्मा को आत्मा में समझाने में, आत्मा क्या है, आत्मा में लगाने का मार्ग बता रहे हैं। मानो आज लोग कहते हैं कि ये हजारों की भीड़ क्यों आ रही है शिविरों में, तो मैं कहना चाहता हूं ये मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का अतिशय है कि लोग उनके तरफ खिंचे आते हैं। जिस प्रकार से कोई चींटी रहती है वह शक्कर की ओर खींची चली आती है। एक दिन चींटी से पूछा, ए चींटी, तुझे शक्कर के प्रति इतना राग क्यों है? वह चींटी बोली, मुझे शक्कर के प्रति राग नहीं है। वह चींटी कहती है, ये शक्कर इतनी मीठी है, मैं क्या करूं, इसके तरफ मैं स्वतः ही खींची चली जाती हूं। वैसे ये मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी हैं, ये इतने गुणवान है, रत्नातयों को उदाहरण किए हुए हैं, 28 मूल गुणों को उदाहरण किए हुए हैं, पंच समितियों को और ईलिया समिति का पालन कर रहे हैं और लगातार धर्म में लगे हुए हैं, धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। हम क्या करें, ये वीतरागी हैं और ये वीतरागी हमें इनसे राग हो गया, तो हम क्या कहें, मेरा दोष नहीं है, ये वीतरागी हैं इसलिए मुझे इनके प्रति राग हो गया। मुझे नहीं मानना कि मैं दोषी हूं क्योंकि ये वीतरागी हैं। अगर हम कहते हैं आचार्य भगवंत के प्रति इतना राग क्यों, तो आचार्य भगवंत के प्रति इतना राग इसलिए है क्योंकि उनकी वीतरागता को देखकर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी उनके हनुमान बन गए और उन्हीं हनुमान के हम चेले बन गए। और हम सभी इसलिए तो आचार्य भगवंत और सुधा सागर जी महाराज जी के और यूं ही खिंचे चले आते हैं। ये ऐसा ही तो चमत्कार है। मैं इसी मंगलमय भावना के साथ में अपनी मंगलवाड़ी को बनाम दे बोल पाएंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया महाराज श्री। एक बार मेरे पास एक फोन आया, वो बोले कि दीपक भैया, आपके यहाँ के ये जो विद्वान हैं ये हमारे नगरों में शिविर में और 10 लक्षण में आते हैं, तो ये अपना जब वक्तव्य देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो दहाड़ते क्यों हैं? तो मैंने कहा कि इनके गुरु सुधा सागर जी महाराज हैं, और जब सुधा सागर जी महाराज हमारे जिन शासन के शेर हैं तो ये उनके बच्चे हैं, म्याऊं म्याऊं थोड़ी करेंगे, अरे ये भी दहाड़ने का ही काम करेंगे। ऐसे हमारे संस्थान के विद्वान एवं हमारे बालिका आवासीय महाविद्यालय की 2 विदुषी बहन बहुत अच्छे तरीके से समय सार की व्याख्या यहाँ पर कर रही हैं। दोनों प्रशंसा के साधुवाद के पात्र हैं। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं विजय भैया को माइक दूंगा, आए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह प्रारंभ हो गया है और अशोकनगर में परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना एक बड़ा कार्यक्रम का आग्रह लेकर आया है। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि आदरणीय श्री भावेश जी हैं, पधारें, पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर अपना आग्रह प्रस्तुत करें। आए श्री भावेश जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री महाराज जी के चरणों में नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 27 सितंबर 1925 से प्रारंभ हुआ। इस वर्ष उसे 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। एक हिंदू समाज का संगठन, उस समय जब कहते थे कि 4 हिंदू भी तब इकट्ठा होते हैं जब 5वां हिंदू उनके कंधे पर होता है, तो ऐसे समाज को संगठित करके आज 100 वर्षों की यात्रा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश भर में कई कार्यक्रम संघ के चल रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कई बड़े बड़े कार्यक्रम, हजारों लाखों स्वयंसेवकों के कार्यक्रम, एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है जो आप लोगों ने संघ की रैली देखी होगी। ऐसा एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है जो प्रत्येक स्थानों पर चल रहा है। ऐसा ही एक अपना कार्यक्रम श्री महाराज जी की आज्ञा से
उनके इसी पंडाल से प्रारंभ होने जा रहा है। 12 अक्टूबर शाम 4 बजे से इसी पंडाल से महाराज जी की सानिध्य में वह कार्यक्रम होगा। क्योंकि जितनी मेरी आयु नहीं है उससे दुगना महाराज जी को इस समाज का, इस संगठन का अनुभव है। तो मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके इस कार्यक्रम के बारे में एक बार वह अपने उल्लेख में बताएं, आशीर्वाद दें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों में। कौन सा कार्य किसे करना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा है और बुरा है, यह विचार करने की अपेक्षा हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जिसमें कार्य हो रहा है वह कौन है, उसकी योग्यता क्या है। जिससे कार्य हो रहा है वह कौन है, उसकी योग्यता क्या है। जहाँ पर कार्य हो रहा है वो क्षेत्र की योग्यता क्या है। जिस काल में कार्य हो रहा है वह काल किस योग्यता को लिए हुए। दो प्रकार की योग्यताएं, एक द्रव्यगत योग्यता, एक पर्यायगत योग्यता, एक उपादान की योग्यता और एक निमित्त की योग्यता। कल जिस पर अपन ने चर्चा की थी, पहले हम अपने आप को पहचाने, तुम्हारी उपादान, तुम अपने आप में कौन हो। शास्त्रों से मत पूछो अभी, गुरुओं से मत पूछो अभी, ये थोपी हुई बातों पर मत सोचो अभी। यदि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यह हो तो तुम मेरे प्रति इतनी श्रद्धा से भरे हुए हो कि मैं जो कहूँगा तुम वही मान लोगे। भगवान तुमसे कहें कि तुम ये हो तो तुम इतनी श्रद्धा है तुम्हारी कि भगवान जो कहेंगे तुम वह मान लोगे। शास्त्रों में जो लिखा है यदि वैसा ही तुम्हें मानना है तुम मान लोगे, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धे ने जो कहा है वह मैं हूं। इस मामले को यदि हम प्रारंभ में ले लेंगे तो हम एक दिन बहुत असहाय हो जाएंगे और हम एक कहते फिरेंगे कि महाराज ने कह दिया था कि मैं यह हूं, भगवान ने कह दिया कि मैं ये हूं। क्यों चल रहे हो इस रास्ते पर? अब महाराज ने कहा था इसलिए चल रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले भगवान की जो मर्जी है वही करूंगा। दुनिया एक बहुत बड़ा गलत कार्य कर रही है। आज्ञा प्रधानी बनकर के तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, सो बात नहीं। तुम एक ही आरोप लगा दो कि मैं क्या करूं, महाराज ने जो आज्ञा दी वो कर रहा हूं। उन्होंने कहा शराब नहीं पीना तो मैंने छोड़ दी। उन्होंने कहा रात्रि में नहीं खाना, मैंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा गाली नहीं देना, मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मंदिर जाना, मैं चला गया। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेना, मैंने ले लिया।
उन्होंने कहा इसलिए कर लिया तो तुम गुरु की कठपुतली बन गए। भगवान ने कहा है ऐसा है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। थोप दिया ना अपना सारा पाप भगवान के माथे। तुमने ऐसा क्यों किया भैया? आपको मालूम है इस दुनिया में जो भी पत्ता पत्ता हिलता है वो भगवान की मर्जी से हिलता है। मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जैसा किया मैंने कर लिया, उन्होंने जैसा कराया मैंने कर लिया। ये बहुत बड़ा आरोप है भगवान के ऊपर। ये भक्त की निशानी नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम स्वयं बताओ तुम्हें कौन हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है? तुम कौन हो? तुम पूछो, माँ बाप से मत पूछो, किसी से मत पूछो, अंदर आवाज से पूछो तुम कौन हो। जो तुम्हारे दिमाग में आवे मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान अनुभूति होती है कि जो तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि मैं यह हूं। यदि तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला भारतीय हूं, ये अंदर की आवाज चाहिए, मेरे कहने से नहीं। वो तो टूट जाएगा। जिस दिन किसी दिन तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ेगा, आज मेरे कहने से तुमने भारतीय कह दिया, कल दूसरे का दबाव पड़ेगा तो तुम अमेरिकन कह दोगे, तुम पाकिस्तानी कह दोगे, क्योंकि हमने थोप दिया है तुम्हारे ऊपर। तुम ये कहो, कोई श्रद्धा के बल पर कहता है, कोई डर के बल पर कहता है। कोई श्रद्धा है तुम्हारी हमारे प्रति, यही किसी दिन डर आ जाएगा, कोई डर के माध्यम से कहेगा कहो। आज तुमने हमारी श्रद्धा से कह दिया कि नमोकार मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। बोलो, सब मंत्रों में श्रेष्ठ नमोकार मंत्र है कि नहीं? किसने कहा? किसने कहा? कह दो सीधा। महाराज आप ही ने कहा है ना, आपने कहा है कि मंत्र श्रेष्ठ है, कह दिया। अब किसी दिन कोई बंदूक लेके आ गया, बोल नमोकार मंत्र सबसे बेकार है, और यदि तूने बेकार नहीं कहा तो गोली अंदर हो जाएगी, तो तुम कह दोगे बेकार है। अच्छा कह दिया श्रद्धा के बल पर, बुरा कह दिया भय के बल पर, तुम इसी में भटकते रहोगे। और एक दिन अपनी अंतर चेतना से कहोगे कि नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरे गुरु ने कहा है अब बंदूकें नहीं सारे प्राण भी निकल जाएं तो नमोकार मंत्र श्रेष्ठ है। अंदर से बोलो कि हम भारतीय हैं। योग्यता, तुम कौन हो? मैं भारत का रहने वाला हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। अब आगे मुझे कुछ नहीं कहना। एक भारतीय की योग्यता क्या होना चाहिए? आर्यपुत्र हो तुम। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। अमेरिका में क्या हो रहा है हम सब कट गए, क्योंकि तुम या तो कह दो कि ना मैं भारतीय हूं ना कुछ नहीं, मैं मनुष्य हूं। तुमने कहा कि मैं मनुष्य हूं, कोई बात नहीं, चलेगा, मनुष्य भी चलेगा। अब आपको वह देखना है कि मनुष्य की योग्यता क्या है, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य के लिए क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। अपनी अयोग्यता पहचानो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। अब पशु जो करता है वो तुम्हारे लिए अयोग्य है, और मनुष्य को जो करना चाहिए वह योग्य है।
योग्यता ही मत पहचानो, अयोग्यता भी पहचानो, क्योंकि तुम असाधारण हो। तुम कहो नहीं महाराज मैं जीव हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीव है तो अब जीव की योग्यता पहचानो कि तुम जीव हो। तुम अजीब हो कि जीव हो? जीव हो तो अब आपका क्या मालूम होना चाहिए जीव की योग्यता क्या है, जीव की पहचान क्या है, जीव का लक्षण क्या है, तुम जीव क्यों हो। परसों मैंने कहा था क्यों, तुम जीव क्यों हो। अभी गुरु से मत पूछो, शास्त्रों की भाषाओं को एक तरफ रख दो, आत्मा से पूछो। यदि तुम्हें अनुभव आ रहा है कि मैं जीव हूं, तो तुम जीव क्यों हो। ये जीव क्यों नहीं है? ये भी जीव है क्या? आप अपनी इच्छा से बताओ। ये अजीब है, तो ये दोनों में और तुम में भेद क्या है? तुम अजीब, ये अजीब क्यों है, तुम जीव क्यों हो? अपनी चेतना से निकालो, अपने अनुभव से निकालो कि ये अजीब इसलिए है क्योंकि इसमें जानने देखने की शक्ति और मेरे में जानने देखने की शक्ति है। बस यहीं से तुम्हारी सारी जिंदगी की शुरुआत होती है। ये जड़ है, अचेतन है, जानने देखने की शक्ति नहीं है। और मैं जीव हूँ कि मेरे जानने देखने की शक्ति है। बस अब आपको अपनी जिंदगी में उस पर ध्यान रहना है जिससे तुम जीव पहचाने गए। यदि जानने देखने की शक्ति नहीं थी तो तुम जीव भी नहीं थे, तुम अजीब थे। लेकिन तुम्हारी जो पहचान है बस अब इसकी रक्षा करना। यदि मैं जीव हूं और जानना मेरी पहचान है तो हम बिना जाने कोई काम नहीं करेंगे, बिना देखे हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जीव हूं और मेरे जानने देखने की शक्ति है। मैं जानूंगा पहले, मैं जड़ नहीं हूं। मैं जानूंगा पहले कि मुझे क्या कार्य करना है, इसका स्वरूप क्या है। कारण जानूंगा, कार्य जानूंगा पहले, अंधे बन करके स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जीव हूं, मैं देखूंगा, मैं देख के काम करूंगा, मैं देख के चलूंगा, मैं देख के बोलूं, सब कुछ जो कुछ करूंगा देख के करूंगा, क्योंकि मेरी पहचान। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज हमें कुछ एक नई पहचान चाहिए, जीव तो सभी हैं, कीड़े मकोड़े भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, तो तुम्हें यदि ऊंचे की अनुभूति करना है तो बीच की सब छोड़ते हुए आता हूं मनुष्य में। अब यदि तुम मनुष्य हो तो आपकी अयोग्यता, जैसे जैसे ऊपर उठते जाओगे आपकी अयोग्यता प्रकट होती जाएगी। योग्यता नहीं, अयोग्यता। यदि आप मनुष्य हो तो जो त्रियंश कार्य करता है आप उसके अयोग्य हो। पशु का लक्षण जानो, अपने आप को अलग करने के लिए पशु का लक्षण जानो, पशु का लक्षण जानो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का लक्षण जानने के लिए तुम्हें पशु का लक्षण जानना है। पशु का लक्षण क्या है, पशु का स्वरूप क्या है, और जो पशु का स्वरूप आए तुरंत लगा लेना, मैं इन कार्यों के अयोग्य हूं क्योंकि मैं मनुष्य हूं। अयोग्यता क्या है? कल मैंने योग्यता की बात कही थी। हिंसा का त्याग कर दिया तो तुम अहिंसक नहीं हो गए। तुमने क्रोध का त्याग कर दिया तो क्षमाशील नहीं हो गए। मान का त्याग कर दिया तो तुम मार्दव नहीं हो गए। तुमने पाप का त्याग कर दिया तो पुण्यात्मा नहीं हो गए। कितने लोग हैं जो पाप नहीं करते हैं लेकिन वे पुण्यात्मा नहीं हैं। कितने लोग क्रोध करते नहीं करते हैं लेकिन वे क्षमावान नहीं हैं। कितने लोग अधर्म नहीं करते हैं फिर भी वो धर्मवान नहीं है। आज मैं दूसरी तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं। तुम्हारे में अयोग्यता क्या है?
अयोग्यता को पहचानो। मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान जब ही होगा जब हम पशुओं के बीच में जाएंगे, पशुओं को समझेंगे। क्योंकि मैं पशु नहीं, मैं मनुष्य हूं। तो जो जो करते हुए पशु दिखे और तुम्हें अच्छा न लगे कि ये कार्य पशु को नहीं करना चाहिए, ये पशु का कार्य अच्छा नहीं है, उसी समय तुम वही नियम ले लेना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं इस बात को त्याग करता हूं, छोड़ता हूं। बस यहां से तुम्हारी योग्यता प्रकट हो जाएगी। मनुष्य में मैंने जैसे कहा तुमसे कि तुम भारतीय हो, यदि आ रहा हो तो मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं। जबरदस्ती थोपने से व्यक्ति भय से, लोभ से, स्नेह से मुंह देखी कर लेगा। अंतर चेतना से स्वीकार करो कि मैं भारतीय हूं। अब भारतीय बनने के लिए आपको पूरे दुनिया की बातें जानना है। भारतीय को सही सिद्ध करने के लिए तुम्हें जानना है कि तुम भारतीय क्यों हो, अमेरिकन क्यों नहीं हो, पाकिस्तानी क्यों नहीं हो, अफ्रीकन क्यों नहीं। वो तो मनुष्य तो वो भी है। तुम क्यों नहीं हो पाकिस्तानी, तुम क्यों नहीं हो अमेरिकन, क्या वो मनुष्य नहीं है? है। अब ऐसी क्या चीज है तुमने अपने आप को भारतीय कहा? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अमेरिकन की पसंद नहीं है? क्यों आप अलग हुए? किसी भी चीज से जब कोई व्यक्ति अलग होता है तभी होता है जब उसकी किसी चीज को उसको पसंद ना हो। आप अपने घर में अलग कब होते हो? जब कोई तुम्हें पसंद नहीं होता, कोई नेचर, कोई चीज तुम्हारे नापसंद होने पर तुम अलग हो जाते। तुम दुनिया से अलग क्यों हुए? क्या कारण है अलग होने का? क्या कारण है तुम्हें अलग होने का? क्या कमी थी अमेरिका में? क्यों ये टाइटल डाल दिए कि ये अमेरिकन है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी? ये जो भेद डाले गए हैं, कोई ना कोई कारण है, उसको हमें पहचानना है। वह यदि हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, हम कभी अपने आप को भारतीय कहने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना, लेना देना क्या? आजकल सुधारवादी यही कह रहे हैं, क्या भारत क्या अमेरिका, क्यों ये भेद रेखाएं डालते हो? पूरा एक करो। नहीं, पूरा एक करो। क्यों भेद डालते हो कि अमेरिका है, ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है? क्यों डालते हो भेद? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपको लोग सिद्ध कर देंगे, आपका तो काम है फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। क्यों भेद कर रहे हो? सबको एक करो। खोजो एक ऐसी चीज, खोजो एक ऐसी चीज कि जैसे मैंने कहा था, मैं पशु नहीं हूं, क्योंकि पशु में ये कमी है, ये गंदगी है, ये गलत है, इसलिए मैं पशुओं से भिन्न मनुष्य हूं। कहो, खोजो भारत के उन देशों को खोजो जिन देशों में कोई ऐसी चीज कमी देखो जो भारत में नहीं है, जो भारत की संस्कृति में नहीं है, भारत के संस्कारों में नहीं। हमें भारतीय मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो मैं चाहता हूं वो वहां है ही नहीं। मैं जो विचार रखना चाहता हूं वहां विचार ही नहीं है। जो मैं संस्कार चाहता हूं वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार मुझे भारत की माटी पे मिलते हैं, इसलिए मैं भारतीय हूं, अमेरिकन नहीं। अब दुनिया उलट पुलट हो जाए तो मैं भारतीय से कभी छुटकारा नहीं पा पाऊँ, कभी नहीं। दबा भय का जाए तो मैं मार डाले, कुछ भी कर डालो, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय है। वो खोजना है, वो नहीं खोज पा रहे हम, इसलिए हमारे भारत के लोग NRI हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनको मालूम नहीं क्या भारत और अमेरिका, क्या भारत और अमेरिका।
क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रहो या अमेरिका रहो, वहाँ भी धन कमाना है, वहाँ भी रोटी खाना है, वहाँ भी सब करना है। भारत और अमेरिका में क्या अंतर है? ये बहुत कमी भारत के लोगों में है, बहुत कमी भारत के लोगों में है, और ये सबसे ज्यादा कमी जैनियों में है। परसेंटेज में देखा जाए तो जैनी सबसे ज्यादा एनआरआई है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया के हर मुल्क में सबसे ज्यादा एनआरआई भारतीय है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत देश के लोग सबसे ज्यादा विदेश में हैं कि विदेशी लोग भारत में? क्यों? क्या कारण है? यही कारण है कि हमने ये कर दिया कि जो भारत में है वही अमेरिका में, चलो वहां 50 लाख ज्यादा मिलते। यदि तुम्हें इतना ज्ञान होता कि रुपया भली ज्यादा और कम है, लेकिन जो हमारे भारत में है वो अमेरिका में नहीं है, तो आप कभी वहां जाने को तैयार नहीं होते, कभी जाने को तैयार। वहां तुम्हें पहचानना है, जानना, अयोग्यता पहचानो। और जो विदेशी लोग कर रहे हैं उसको हमें नहीं करना, तभी हम भारतीय मानेंगे। जो विदेशी कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमें नहीं करना, तभी जाकर के हम अपनी अयोग्यता का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए हर देश भारत में अपनी संस्कृति प्रवेश करा रहा है और हम लुटते जा रहे हैं। हम लुटते जा रहे हैं, हम सस्ते के नाम पर लुट रहे हैं, हम विज्ञापन के नाम पर लुट रहे हैं, और हमारा देश की संस्कृति खोखली होती जा रही है। हमारा देसी अनाज महंगा है, विदेशी सस्ता है। हम सस्ते पे मर गए। हमने ये नहीं देखा कि विदेशी अनाज में क्या है और हमारे भारत के अनाज में क्या है। हम नहीं संभाल की अयोग्यता नहीं देखते, हम सस्ते पे चले गए। हम सस्ते पे चले गए कि देखो, यदि हम अमेरिका से, अफ्रीका से अनाज मंगा लेंगे तो हमें 10 रुपया किलो सस्ता मिलेगा गेहूं, 10 रुपया सस्ता मिलेगा चना। आपने मां सस्ता देखा है, तुमने योग्यता नहीं देखी कि भारत की अनाज की क्या योग्यता है, और जो योग्यता भारत के अनाज में है वो विदेशी अनाज में नहीं है। ये अयोग्यता तुम पहचान लेते तो वो फोकट में भी देता तो तुम खरीदते नहीं, भारत में आने नहीं देते। लेकिन तुम्हें तो इससे मतलब ही नहीं, तुम जान ही नहीं रहे कि कितना योग्यता है। तुम नहीं समझ रहे कि तुम्हारी माँ के हाथ की बनी रोटी में क्या योग्यता है। क्या योग्यता है? खाने की चीज चाहे भारत की खाओ चाहे चीन की खाओ, पेट तो भरते ही। चाइना भोजन आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहते भोजन वो है, भोजन ये है। तुम पहचानो चाइना भोजन की अयोग्यता जो तुम्हारे भोजन में नहीं है और उसमें है। तुम्हारे भोजन में नहीं है और उस भोजन में वो है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे भोजन में नहीं पाई जाती है, अयोग्य है। और यदि तुम अपने आप में भारत में रहते हो तो आपको पहचानना होगा भारतीय व्यक्ति के लिए क्या अयोग्य है। जैसे ही तुम उसकी अयोग्यता पहचानोगे फिर आपको वो फोकट में भी खिलाएगा तो आप नहीं पहचानोगे, बोले ये मेरे लिए अयोग्य है। भोजन है कि नहीं? भोजन तो है लेकिन अयोग्य, अयोग्य है मेरे लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तुम जैन हो तो सारी दुनिया खा रही है तो ठीक, तुम जैन क्यों हो? क्यों जैन हो जो तुम दुनिया से अलग होना चाहते हो? क्यों अलग होना चाहते हो? आप कोई दुनिया में कमी बताइए, दुनिया से आप अलग क्यों हो रहे हो? क्यों जैन हो? कुछ दुनिया में एक ऐसी कमी बताइए कि यह कमी उनमें होने से मैं जैन हूं, वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। मैं मुनि हूं। क्यों साहब आप मुनि क्यों हो? हम आप गृहस्थ हैं।
मैं मुनि हूं। क्यों हो मुनि? आप क्यों दुनिया से अलग होना चाहते हो? क्यों अपना अलग टाइटल बनाना चाहते हो? तुम क्यों अलग अपने आप को शो पेश करना चाहते हो? क्यों कहते हो कि मैं मुनि हूं? अब हमें गृहस्थ में कोई कमी ढूंढना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि गृहस्थ रहने में यह कमी है, इसलिए मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं गृहस्थी के कार्य के अयोग्य हूं, क्योंकि मैं मुनि हूं। तो महाराज जो कार्य हम कर रहे हैं आपको करने में क्या बाधा है? अब देखना, वही कार्य तुम्हारे करने के लिए योग्य है और मेरे लिए कितने कार्य हैं जो तुम्हारे लिए योग्य हैं, हमारे लिए अयोग्य है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा, महाराज हमने भी कार्य किया, आप भी दीप प्रज्वलन कर रहे हो, एक आध दिन मैं भी कर दूं, क्यों? अरे कोई मैं गलत आदमी हूं क्या? वो दीप प्रज्वलन आपके लिए योग्य है और हमारे लिए अयोग्य। अयोग्य है वो शस्त्र, आपके लिए योग्य है, सैनिक के लिए योग्य है और हमारे लिए। मैं भी तलवार ले लूं? अभी आरएसएस की शस्त्र पूजन हुई थी, तो लोगों ने कहा महाराज जी एक बात का, रास्ते में जा रहे थे, शस्त्र पूजन के संबंध में आपके क्या विचार है? मैंने कि मेरे लिए तो अयोग्य है। महाराज हमारे लिए? हमने कि तुम्हारे लिए तो योग्य है। ऋषभ देव ने, देख लीजिए, एक ही ऋषभ देव तीर्थंकर ने, जैनियों में शस्त्र नहीं है, जैनी जब से शस्त्र त्याग दिया है ये जैनी बनिया हो गए। भारत के हर व्यक्ति के घर में शस्त्र होना चाहिए श्रावक के। ये ऋषभ देव का उपदेश था। शस्त्र के बिना देश की रक्षा नहीं हो सकती। पहला उपदेश दिया ऋषभ देव ने, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहला उपदेश खाने पीने का नहीं दिया, कमाने का नहीं दिया, सबसे पहला उपदेश दिया असी का। पहले रक्षा करो। और शस्त्र तुम्हारी शोभा थी, शस्त्र तुम्हारी रक्षा थी, लेकिन तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अब ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, अदला बदली करता हूं, तुम्हारी तलवार हमें दे दो, हमारी पिछी तुम ले लो। बोलो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। सब मिला लो। चलो ऐसा करो, तुम भी तलवार पीछे रख लो, हम भी दो ही रख ले रहे। आज यही तो तुम्हारे संस्कार और संस्कृति मिल रही है सारी दुनिया में। तुम विदेशी होते जा रहा है, वो तो देसी होते जाए, और विदेशी सब मिला लो। महाराज आप भी तलवार रखो, हम भी तलवार रखते हैं, आप भी पीछे रखो, हम भी पीछे रखते हैं। दो ही काम नहीं हो सयाने। तलवार रखने वाला पिछी नहीं रख सकता और पिछी रखने वाला तलवार नहीं रख सकता। आप पिछी के अयोग्य हैं। आप पिछी रखना चाहें तो अयोग्य हैं, नहीं रख सकते। यदि गृहस्थ ने पिछी रख ली तो उसकी दुर्गति है। पिछी रखना, पिछी कोई गलत चीज नहीं है। पिछी जीवों को बचाती है कि नहीं? यदि तुमने चींटी जा रही थी, वो पीछे से तुमने चींटी हटाई, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, तुम्हें पाप लगेगा। कोई गलत कार्य नहीं किया। क्या किया है? किससे हटाया तुमने चींटी को? पीछे से हटाया। कल ही परसों कहा था सर, पीछे से चींटी हटाई है तो तुम्हें पाप है, मिथ्या दृष्टि हो। किससे हटाई चींटी? पीछे से। पीछे के अयोग्य हो, तुमने कैसे उठा ली? महाराज जी मैंने कोई पाप थोड़ी किया है। मैंने तो नहीं, तुम चींटी को पीछे से नहीं बचाओगे, तुम पीछे से छोटे से कपड़े से बचाओगे, पीछे नहीं बचाओगे। मयूर पंख से बचा सकते हो, पीछे से नहीं बचा सकते। पीछे अलग चीज है और मयूर पंख अलग चीज। मयूर पंख से तो बचाओ। किससे पीछे बचाए? जीव बचाया,
आप कहो मयूर पंख से, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने पिछी कहा, खत्म। नाम बदल दो, नाम में कितना अंतर है। इस पिछी में क्या है? मयूर पंख है। और इसी मयूर पंख के संग्रह को पिछी कह दिया, आप अयोग्य हैं, और मयूर पंख कह दिया तो आप योग्य। मयूर पंख में कोई आपत्ति नहीं। मैंने मयूर पंखों से चींटी बजाई है, चलेगा। पीछे से बचाई है, नहीं चलेगा। अलग अलग अपने आप में योग्यता और अयोग्यता को पहचानो। ग्रस्त हो तुम, क्षत्रिय हो तुम। ऋषभ देव ने कहा है, यदि जैनी तुम क्षत्रिय अपनी रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें शस्त्र रखना पड़ेगा। तुम्हें सशस्त्र व्यायामशाला खोलो, सशस्त्र जिम खोलो। सशस्त्र होना चाहिए, निशस्त्र नहीं। निशस्त्र सब हमारे खाते खोलो। हम लोग पिछी शाला खोलेंगे, तुम लोग शस्त्र शाला खोलो। और पूजा का अर्थ उनको अर्घ नहीं चढ़ाना, भगवान जैसा नमोस्तु नहीं करना। पूजा का अर्थ होता है मांगलिक, शगुन करना। जैन दर्शन में शस्त्र पूजा का स्थान लिखा, मांगलिक करना। चक्रवर्ती ने सुदर्शन चक्र की पूजा की। क्या किया? केसर लेकर उस पर छिटक दिया, स्वस्तिक बना दिया, मांगलिक हो गया। भगवान की पूजा अलग की जाती है और शस्त्र की पूजा अलग। उसका सगुन करना ही, मांगलिक करना ही पूजा है। और जैन देव की, भगवान की पूजा अलग ढंग से की जाती। तो पूजा का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उसकी विधि है। इसी प्रकार से जब आप लोग कोई भी राष्ट्रीय संगठन होता है तो वो योग्यता, आप भेद मत करो इसमें। आप राष्ट्रीय संगठन हैं तो अभी लोगों ने कहा कि महाराज जी आरएसएस हिंदू संगठन है। मैंने कही भाई हिंदू तो वह है जो हिंदुस्तान में रहता है। अब मैं मुनि की व्याख्या खत्म करो, श्रावक की व्याख्या खत्म करो। अब हम मात्र हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदुस्तानी है और वह सब हिंदू है। अब इसमें बीच में धर्म नहीं आना चाहिए, बीच में जाति नहीं आना चाहिए, बीच में मुनि महाराज और श्रावक नहीं आना चाहिए, बीच में बाप बेटा नहीं आना चाहिए। अब मात्र हिंदुस्तान किस चिड़िया का नाम है? एक देश का नाम। और देश में रहने वाला, देश में जन्मने वाला। मैंने एक दिन कहा था कि देश हिंदुस्तान किसका है? जिसके भगवान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, जिसका विहार हिंदुस्तान में हुआ हो, जिसके भगवान का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ है, वह हिंदुस्तानी है। और यदि अपनी अपेक्षा लो तो सब, कोई जाति भेद मत करो, कोई जाति नहीं। जैन की नहीं कह रहा हूं, जैन एक जाति है, ब्राह्मण एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है, यादव एक जाति है, गुर्जर एक जाति है, मुसलमान एक जाति है, ईसाई एक जाति है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितनी चाहे। लेकिन जब तुम हिंदुस्तान की बात करोगे तो हिंदुस्तानी वह है जो हिंदुस्तान में रहता है, जन्मता है, सोता है, खाता है। उसे हर व्यक्ति को, जो इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, वह सब हिंदुस्तानी है। उसे हिंदुस्तानी मानना चाहिए, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि बहुत महान होती है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? इसमें जाति कहाँ से आ गई? आपका जन्म कहाँ हुआ? भारतीय कहो, हिंदुस्तानी कहो, एक ही बात। भारतीय हो तो आपकी जाति कहाँ से आ गई? जैन जन्मेगा तो वो माटी कौन सी होगी? भारत की कि पाकिस्तान की कि अमेरिका की? जब तुम बिहार करोगे तो कहाँ करोगे? सब कुछ है। उस समय तुम्हारा जीवन इतना विस्तृत हो जाए, हम सब भागे, जाति से ऊपर उठ जाओ।
मैं तो कहता हूं हिंदुस्तानी वह है जो भारत में जन्मा है, भारत में रहता है, भारत का पानी पीता है, भारत की हवा खाता है। वे सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण है, सब हिंदुस्तानी हैं। व्याख्या तो यही है, हम जाति के नाम पर देश को न बांटें, हम जाति के नाम पर देश को न बांटें। देश जाति से बहुत ऊपर है। मैं तो सभी से कहता हूं, देश को जाति से मत बांटो। जब देश की बात आए तो कोई जाति नहीं, जो कुछ भी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, जो कुछ भी है, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारत है। और जो जन्म भारत का हुआ है वो भारत उसकी माता है, उसे वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म जन्म देने वाली माँ होती है, माँ कहने में सबको माँ कहो, कोई बाधा नहीं। इसलिए मैं सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अभी 12 तारीख को होने वाला है, आज थोड़ा इन्होंने कहा कि कुछ बोल दो कि जैनी लोग भी, मैं तो सबसे बोल रहा हूं, चाहे कोई भी शक्ति हो, कोई भी संगठन हो, जो देश के नाम पर काम कर रहा हो, उसमें हर जाति को शामिल होना चाहिए, जैनियों को भी, देश के नाम। हाँ, यदि देश के नाम पर वो धर्म का नाम ले ले तो फिर अलग हो जाना चाहिए। कोई संगठन यदि धर्म के नाम ले लिया तो तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। जब कोई कहे कि हम श्रावक और मुनि हैं तो तुम श्रावक हो और मैं तुमसे अलग हूं, तुम्हारा से मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हमारे भारत के नाम आए, धर्म का नाम कभी बीच में नहीं लाना। जो राष्ट्रीय संगठन है, जो राष्ट्रीय आवाज है, जो भारत माता को मां कहता है, उसके लिए कभी कोई भी धर्म नहीं, कोई भी बलदियत नहीं, कोई भी जाति नहीं। उसके लिए तो एक ही है, राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र हमारी माता है और हम सब उसकी वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय माता है। तो राष्ट्र के नाम पर जो भी संगठन बने उसमें सभी जातियों को शामिल होना चाहिए। यदि जिस संगठन में धर्म की बात आ जाए फिर सबको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म सबका एक नहीं हो सकता, देश सबका एक हो सकता है। देश सबका एक हो सकता है, धर्म एक नहीं हो सकता। धर्म तो एक घर में भी अलग अलग हो सकता है। धर्म सबका अलग, मुनि धर्म अलग है, श्रावक धर्म अलग है, धर्म सबका अलग अलग है। लेकिन जब देश की नाम आ जाए, देश के लिए कोई संगठन हो, तो मैं सभी से कहता हूं सबको जुड़ जाओ और उसमें प्रस्ताव लेना चाहिए। ये मात्र देश का संगठन है, देश को इकट्ठा कर रहा है, देशवासियों के लिए है। इसके बीच में कभी धर्म नहीं आएगा। यहाँ धर्म नहीं पूछा जाएगा कि तुम जैन धर्मी हो, कि तुम वैष्णव धर्मी हो, कि तुम मुस्लिम धर्मी हो, कि तुम ईसाई धर्मी हो। हम ये धर्म नहीं पूछेंगे, हम एक ही बात पूछेंगे, क्या तुम्हारा देश है? यदि तुम्हारा देश है तो आओ, हम सब भाई भाई हैं और हम मिल करके एक होकर के चलेंगे, एक होकर के चलेंगे। इसलिए राष्ट्रीय संगठन जब बनते हो उनको सब एक हो, जातियों के कारण से अलग मत हो। राष्ट्रीय संगठनों में कोई जाति अलग नहीं हो, उसमें जाके मिलो, घुलो, अधिकार लो। मैं तो कह रहा हूं, ये कह रहे थे कि महाराज जैनियों को भी स्वयं सेवक संघ में मिलना चाहिए। मैं तो उल्टा आदमी हूं, जैनियों को कहना चाहिए मैं स्वयं सेवक संघ में मिलूंगा। अंतर आ गया ना? एक एडमिशन दे रहा है और एक एडमिशन ले रहा है। अधिकार है। यदि ये राष्ट्रीय संगठन है तो हम जैनी भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमारा देश भी भारत है और हम भारत के लिए हैं। हमें इसमें एडमिशन लेना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
किसी धर्म का संगठन नहीं है, किसी जाति का संगठन नहीं है। किसका संगठन है? राष्ट्रीय संगठन है। तो आपको राष्ट्रीय संगठन से अलग मत हो, राष्ट्रीय संगठन से मत टूटो। राष्ट्रीय संगठन से टूटोगे तुम्हारा फिर राष्ट्र नहीं रहेगा, और राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा रहोगे तो हमेशा कोई भी, क्योंकि मैं भी इस स्वयंसेवक संघ का मैं भी सदस्य रहा हूं। मैंने भी वो ड्रेस पहनी है जो अब तो तुम्हारा फुल पैंट हो गया, उस समय तो हाफ पैंट था, टोपी तो वही थी। उस समय थे रज्जू भैया थे, बहुत पुराने थे। उस समय की स्थितियां उस समय भी थी, और उस समय हम लोगों के समय एक ही था, एक ही नारा। जब शाखा लगती थी तो एक ही बात कही जाती, हमें किसी जाति से द्वेष नहीं है। हमारा भाई वो है जो भारत को अपना राष्ट्र मानता है, अपना देश मानता है, कि हमारा देश भारत है, हमारा देश राष्ट्र है, वह हमारा सगा भाई है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं संगठन का नाम है जिसमें सब आ जाए। यदि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई मुस्लिम आना चाहे ये मानकर कि ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, और ये राष्ट्र मेरा है तो ये राष्ट्र मेरा माँ है, और ये राष्ट्र के लिए मेरी वंदना है, तो कहाँ ऐतराज है? हमें तो कोई ऐतराज नहीं। आइए अपन सब राष्ट्र के नाम पे चलते। इसलिए राष्ट्रीय संगठनों को हमेशा योग्यता पहचानो। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो उसमें सभी को जुड़ना चाहिए। जैनियों से मेरा कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ना चाहिए। जहां वहां धर्म की बात आए तो आप आवाज उठाइए कि ये धर्म का संगठन नहीं है, ये राष्ट्र का संगठन है। राष्ट्र के नाम से हम सब एक हैं, राष्ट्र के नाम से हमारा संगठन है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सब तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति को तैयार रहेंगे। हमारे देश की जो राष्ट्रीय संस्कृति है वह संस्कृति हमारे लिए सब मिलकर के रक्षा करना है। अकेली एक जाति नहीं कर पाएगी राष्ट्र की रक्षा। एक जाति अपने धर्म की रक्षा कर सकती है, राष्ट्र की रक्षा के लिए तो सभी जातियों को मिलकर के एक होना पड़ेगा। ऐसा ये बात आई तो 12 तारीख को उन्होंने कहा ऐसा उपदेश दो महाराज, प्रत्येक जैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन के आवे। मैंने कही राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन के, मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनने को तैयार हूं और हूं। फर्क कितना है, तुम्हारे हाथ में तलवार होगी, हमारे हाथ में पिछी होगी। अच्छा ये बताओ, क्या साधु राष्ट्रीय नहीं है? मैं भी राष्ट्रीय हूं, भारतवासी हूं, स्पष्ट रूप से। फर्क इतना है कि हमारा जब धर्म आएगा तो हमारा मुनि धर्म होगा। राष्ट्र के नाम पर तो अपन सारी दुनिया, चाहे मुनि महाराज हों, चाहे श्रावक हों, चाहे गृहस्थ हों, कोई भी हो, सब के लिए एक राष्ट्रीय रूप मानना चाहिए। कोई आशीर्वाद देकर स्वयंसेवक है, कोई आशीर्वाद लेकर स्वयंसेवक है, कोई साधना करके भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अपन साधना करके भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, और सैनिक दुश्मन को रोक करके भारत का गौरव बढ़ा रहा है। दोनों गौरव बढ़ा रहे हैं। यदि सारा देश सैनिक बन जाए तो, सारा देश सैनिक बन जाए तो, और सारे देश यदि धर्मात्मा भारत में रहने लग जाए तो नहीं। सैनिक का तरीका अपना अलग है और अंदर रहने वालों का तरीका, भारत के अंदर रहने वालों का तरीका है कि वो भारतीय संस्कृति को अपनाए, और सैनिक का है कि भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वालों को रोके। हम वो हैं साधु जो भारतीय संस्कृति को आचरण में ला करके हम भारत का गौरव बढ़ाएंगे, और तुम वो हो जो
साधुओं की और संस्कृति की रक्षा करके सैनिक बन के गौरव बढ़ाओ। तुम्हें सैनिक बन के गौरव बढ़ाना। और ऐसी योग्यता जब आ जाती है, ऐसी परिणति आई, तो सब चीजों में अपन को अपनी योग्यता और अयोग्यता को पहचानना है। हम किसके अयोग्य हैं? हम पाश्चात्य संस्कृति के अयोग्य हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति के अयोग्य हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। लोग कहें भैया इस चीज में क्या आपत्ति है, यही चीज अमेरिका वाले कर रहे हैं, आपको करना नहीं। हम पाश्चात्य संस्कृति के अयोग्य। जैसे हमने कहा आप भी 2 टाइम भोजन करते हो। महाराज जी हम सब 2 टाइम भोजन करते हैं, तो आपको करने में क्या आपत्ति है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हम अयोग्य हैं। हम 2 टाइम भोजन करने के अयोग्य हैं। अब देख लीजिए, वही तुम योग्य हो, उसी के लिए मैं अयोग्य हूं। तो ऐसी संस्कृति के लिए हमें जानना है कि हम अयोग्य किन किन चीजों के लिए हैं। यदि आप मानते हैं कि हम जैनी हैं, हम जैन धर्म मानते हैं, तो आप देखो कि आपको अयोग्य क्या है। क्योंकि आप असाधारण क्यों हैं? आप क्यों जा रहे हैं कि इस मंदिर में हम जा रहे हैं, हम महावीर स्वामी को मानते हैं? आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे महावीर स्वामी इस योग्यता में, इस अयोग्यता से रहित हैं जो देव में हमारी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु में वह अयोग्य है, वो चीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब दुनिया के गुरु उसको लिए हैं, तो फिर जैन गुरु और अन्य गुरु में अंतर क्या रहा? जैन गुरु की अयोग्यता क्या है? जैन गुरु में क्या नहीं होना चाहिए, तब वो जैन माना जाएगा। जैन भगवान में क्या नहीं होना चाहिए, तब वो जैन भगवान माना जाएगा। जैन श्रावक में क्या नहीं होना चाहिए, जब वो जैन श्रावक माना जाएगा। जैन धर्मावलंबी में क्या नहीं होना चाहिए, तब वो जैन धर्मावलंबी माना। क्या नहीं होना चाहिए, इस बात पर आज कोई विचार नहीं किया जा रहा। एक ही बात कहे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए दोनों बातें सोचो, कल का और आज का प्रवचन दोनों एक करो, दोनों बातें एक करो। हम में क्या होना चाहिए ये भी हमारे लिए जानना है, और क्या नहीं होना चाहिए ये भी हमें जानना है। कोई लोग कहें कि महाराज इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम भारत को भी मानते हैं और अमेरिका को भी मानते हैं। नहीं, हम वहां की संस्कृति भी मानते हैं, यहाँ की संस्कृति भी मानते हैं। नहीं, आपको एक कहना पड़ेगा कि नहीं, भारत वो है जिसमें पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। अब तुम अध्यात्म में आ जाते हो। जैसे आज प्रातःकाल कहा कि निश्चय नय और व्यवहार में। निश्चय नय की अयोग्यता क्या है? आप अपने आप को कहते हो निश्चय नय। निश्चय नय की योग्यता क्या है, निश्चय नय की अयोग्यता क्या है? निश्चय नय में क्या नहीं होना चाहिए? निश्चय नय में जीव नहीं होना चाहिए, निश्चय नय में आत्मा होना चाहिए। व्यवहार नय की अयोग्यता क्या है? व्यवहार नय में आत्मा नहीं होना चाहिए, जीव होना चाहिए। व्यवहार नय में भेद होना चाहिए। ये व्यवहार नय की अयोग्यता है कि वो कभी अभेद नहीं करेगा। भेदस्तु व्यवहारा। व्यवहार है तो व्यवहार का काम ही है कि भेद करो, जितना भेद कर सको करते जाओ। और निश्चय का काम है जितना अभेद कर सके करते जाओ। दोनों चाहिए। चूहे का काटा हुआ कपड़ा नहीं चाहिए, टेलर का काटा हुआ कपड़ा चाहिए। टेलर कपड़े को काटता भी है और टेलर कपड़े को सीता भी है। अब सही क्या है, काटना की सिलना? मैं सदा उदाहरण देता हूं कि एक चूहे ने एक कपड़े को कट लगा दिया। 1000 रुपये के मीटर का कपड़ा था और 500 रुपये में बिका। वो दुकानदार ने चूहे को बहुत गालियां दी, बददुआ दी, इसे नाश कर दिया, इतना कट लगा करके मेरे 500 रुपया।
चूहा कहता है इतना कट लगने से इतनी गालियां मिल रही है, तो वो जो अच्छा 1000 रुपया काट के ले गया, 1000 रुपया मीटर कपड़ा ले गया था, चूहा ने उसका पीछा किया, देखो ये क्या करता है। तो वो कपड़ा लेकर टेलर के पास गया और टेलर ने कैंची उठाई, उसके कितने टुकड़े किए। चूहा कहता है मकान मालिक से, मूर्ख, मैंने तो इतना सा कट लगाया है तो बददुआ दे रहा, देख तेरा बाप वो टेलर। तेरे कपड़े को ले जा करके उसने 50 टुकड़े कर दिए, उसको कितनी बददुआ दोगे। मैंने इतना सा कट लगाया था बस, उसमें तुझे मुझे इतनी बददुआ दे डाली, मुझे मारने का भाव कर लिया। तो चूहा मार दवाई लेके आ गया, तो मुझे पिंजड़ा लगा लिया, देख उसने तेरे कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बोलो ये चूहे का क्लेम कैसा है। बोलो चूहे का कट बड़ा था कि टेलर का कट। बस महानुभाव इतना ही सा अंतर समझना है, चूहा काट रहा है लेकिन उसे काटने की विधि पता नहीं है, कहां से काटना है। वो जहां चाहे काट कट लगा दिया, कैसा आकार में काटना है ये उसको ज्ञान नहीं है, किस फेस में काटना है, कितना काटना है, ये ज्ञान के अलावा छोटा सा भी कट निंदनीय है। और टेलर उसके 50 टुकड़े करता है काट काट के, तो भी कटाई के पैसे देते हो। काटने का पैसा अलग लगता है। और चूहा, दूसरा दुर्गुण चूहा में है कि काटने के बाद चूहा सी नहीं सकता, लेकिन टेलर का गुण है वो काटता भी है और सीता भी। ये गुण जिसके पास आ गया है, व्यवहार और निश्चय नय, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। व्यवहार काटता है, निश्चय सीता है। दोनों नय जिसके पास हैं वो टेलर है, और एक एक नय जिसके पास है वो चूहा है। जो कहता है मैं निश्चय वाला हूं, उसको निश्चय वाला नहीं कहना, आज से कहना चूहा है। चूहा है वो मूषक है। और जो कहता है मैं व्यवहारी हूं, तो उसे व्यवहारी नहीं कहना, चूहा कहना। क्योंकि ये व्यवहार और निश्चय नए एक एक करके यदि हम चलेंगे तो चूहे के समान हो जाए। क्योंकि चूहा को यही ज्ञान नहीं है कि कहाँ किस रूप में भेद करना। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां समझाने की बात आई तो कहते नहीं, व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा। और जहां अनुभव की बात आई तो उन्होंने कहा निश्चय से बिना काम नहीं चलेगा, व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। यह अनेकांत दृष्टि, अपने आप को कभी भी निरपेक्ष नहीं करना। हमेशा कभी अपने आप को क्रियाकांडी मत मानना, अपने आप को अक्रियावादी भी मत मानना। अपने आप को मात्र क्रिया ही धर्म है ऐसा नहीं, क्रिया भी धर्म है। हमें निश्चय नय को भी समझना है। जैनी कहेगा मैं ना तो निश्चय वाला हूं ना व्यवहार हूं। जैनी कहेगा मैं जैनी भी हूं और भारतीय भी हूं। मैं जैनी भी हूं, हिंदुस्तानी भी हूं। मैं मुनि भी हूं और मनुष्य भी हूं। बोलो मैं क्या हूं? मैं मनुष्य भी हूं, मैं मुनि भी हूं। मैं जैनी हूं, मैं भारतीय हूं। जितने हद तक मैं निश्चय वाला हूं, उतने ही हद तक मैं व्यवहारी हूं, क्योंकि मैं टेलर हूं। जब काटने की जरूरत आएगी तो कैंची से काटूंगा। कितने आकार प्रकार में काटूंगा, कितने टुकड़े करूंगा, कोई गिनती नहीं है। और जब सीने की बात आएगी तो हम उसको सुई से सिएंगे भी। निश्चय नय सुई का काम करता है, व्यवहार नय कैंची का काम करता है। दोनों में से एक हटा दी जाए तो कभी सूट नहीं बन पाएगा। तुम थान को लपेटे घूमना।
थान को लपेटे घूमना, ये निश्चय वाले ऐसे ही हैं। ये थान को लपेटे घूम रहा है क्योंकि व्यवहार तो से कटिंग तो कराना नहीं है, नहीं कट नहीं लगना चाहिए, कटिंग नहीं कराना, तो थान लपेट के घूमो। और थान लपेट के साड़ी तो बन सकती है, सूट नहीं बन सकता। सुन रहे हो ना? थानी से सूट तो बन सकती है, साड़ी तो बन सकती है, लेकिन सूट नहीं बन सकता। तो जो अकेले निश्चय वाले हैं, व्यवहार की निंदा करते हैं, व्यवहार को करते हैं, वे साड़ी वाले हैं। और साड़ी वाले कौन होते हैं? समझदार को इशारा काफी है। साड़ी दो ही पहनते हैं, या तो स्त्रियां पहनती हैं या फिर नचैया पहनता है। तीन पहनते हैं, नाटकखोर पहनता है। साड़ी तीन लोग पहनते हैं, स्त्री पहनती है, या हिजड़ा पहनता है, या नाटकखोर पहनता है, नाटक करने वाला है। हाँ, नाटक में पहन लेते, कई लोग पुरुष भी स्त्री बन जाते। कई पुरुष हैं ओरिजिनल, लेकिन कपड़े पहनकर क्या बन जाते हैं? तो जो अकेले निश्चय वाले हैं, या तो वे नाटकखोर हैं क्योंकि वो थान लपेटे हुए हैं, या फिर वो ही हैं, या फिर यही हैं। अब थोड़ा व्यवहारियों को भी निपटा दूं। जो व्यवहार को अकेला मानता है मैं व्यवहारी हूं, वो सूट नहीं चिथड़े लटकाए हैं, तो चिथड़े लटकाने वाला भिखारी है, भिकमंगा है। एक बांह इधर लटक रही है, एक बांह इधर लग रही, सीना तो वो जानते ही नहीं है, कटवा दिया अकेला, कटिंग कर दी उसने, निश्चय का आलम्बन लिया ही नहीं। जो निश्चय का आलम्बन नहीं ले रहे हैं वे भिखारी के समान कब तक कपड़े संभाल दो, ये टुकड़ा यहाँ गिरेगा, ये टुकड़ा यहाँ गिरेगा, एक दिन नंगा घूमेगा। कहाँ तक पकड़ोगे? क्योंकि सिया तो है ही नहीं। अकेले कपड़े की कटिंग करवा लो, और कटिंग करवा के ना भैया सीना नहीं, हम व्यवहारी है, और फिर उसको डालो कब शरीर के ऊपर, टिक जाएगा? नहीं टिकेगा, टिकेगा नहीं। व्यवहारी अनंतों काल से अनंतों भाव अपन व्यवहार में निकाले, भिखारी के भिखारी बने रहे, दर्द के दर्द बने रहे, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हमने व्यवहार अपनाया। स्वर्ग तक गए, व्यवहार अकेला स्वर्ग तक ले जाएगा। व्यवहार मोक्ष नहीं है, व्यवहार मोक्ष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।